children, this is the chapter number 17, National Movements. And in the previous video, we had studied about the partition of Bengal 1905 and Moderates Congress and its working. And now today, we will study about the rise of extremism in Congress. The criticism of government became sharp in the session of Congress and strong demands were being put up gradually. A new trend of extremism developed in the Congress in the early years of the 20th century. This new trend shunned the tradition of putting up a request before the government. Bal Gangadhar Tilak, Lala Rajpat Rai and Bipin Chandra Pal were the propagators of this new ideology. The trio sang and tune of the past glory of country to instill the sense of the confidence and national pride among the people. They said that mere demands for changes in administration were not enough. The objectives of Indian people should be to achieve Swaraj. Tilak coined famous slogan, "Swaraj is my birthright and I must have it." This could be achieved only by working among the masses and by participation of the masses in political affairs. Tilak's newspaper Kesari became the mouthpiece of the new group of nationalists. These nationalists utilized the popular festivals like Ganpati and Shivaji to spread political awakening among the people. They also developed new methods of political agitation like hurtals and the boycott of foreign goods. Children, previous video में हमने नेशनल कांग्रेस की स्थापना, पार्टीशन ऑफ बंगाल और मॉडरेट्स का किस तरह से वो वर्क करते थे वो पढ़ा. नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस. अब क्या हुआ, मॉडरेट्स जो थे वो डेलीगेशन भेजते थे और अपनी जो बातें थी गवर्नमेंट के सामने वो रिटन में रखते थे और उनसे उम्मीद करते थे कि वो उनकी बातें सुनेंगी और वो शांतिपूर्वक अपनी बातें उनसे मनवाना चाहते थे. लेकिन अब धीरे धीरे जब कांग्रेस के बीच में बैठकें होने लगी तो 20वीं सेंचुरी में कांग्रेस का एक नया रूप सामने आया. अब वहाँ पर कुछ लीडर्स थे, वो ये मानने लगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये अब शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट करने से नहीं मानेगी. इसलिए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जो थे ये नई आइडियोलॉजी उन्होंने पेश की. ये उसके प्रोपोगेटर्स थे. अब उन्होंने हमारे देश की जो ग्लोरी हिस्ट्री है उसको लोगों के सामने रखना शुरू किया और लोगों को आत्मविश्वास अपना बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और साथ साथ लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वो अपने देश के ऊपर गर्व करें. बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने फेमस स्लोगन दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. और अब जो कांग्रेस थी ये दो गुटों में बट गई. एक तो मॉडरेट्स थे, दूसरे एक्सट्रीमिस्ट थे. ये दोनों ही अपनी, जो मॉडरेट्स थे वो शांतिपूर्वक अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस के लीडर्स थे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को अब हमारी मांगें माननी ही पड़ेंगी. और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना और गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स मनाना ताकि लोग वहाँ पर इकट्ठे हों और उनको नेशनल अवेकनिंग के लिए जागरूक किया जा सके. So, a new trend of extremism grew in the Congress in the initial years of the 20th century. The prominent extremist leaders were Lal, Bal and Pal, and Tilak had said, "Swaraj is my birthright and I must have it." Now, the formation of Muslim League 1906. The British made special efforts to subdue the growth of the feelings of national unity among the people. The British harped on the point that Hindus and Muslims had separate interests. And it was also announced that if the educated Muslims would be loyal to the British rule, they will be awarded with the government jobs and other facilities. The extremist leaders had organized religious festivals to rouse the feeling of nationalism. The British encased this opportunity and said that the Hindus were organizing the national movements for themselves. The Congress was divided into two groups, extremists and moderates, in the early years of the 20th century. In this way, trend of extremism came into being. The government which promoted communal politics and prior roots in India before the formation of Muslim League.
In 1906, a Muslim delegation under the leadership of Aga Khan met the Viceroy Minto at Shimla. The religious leader Aga Khan was an affluent man. Another important leader was Nawab Salim Ullah from Dhaka. Viceroy Lord Minto encouraged the morale of this delegation. अब जो कांग्रेस थी वो दो गुटों में बढ़ चुकी थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और मॉडरेट लीडर थे। तो इन्होंने जब गणपति और शिवाजी जैसे महोत्सव उन्होंने स्टार्ट किए तो जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट करने का जो चाल थी उन्होंने वो चली। अब वो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी मुस्लिम एजुकेटेड रहेंगे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छी जॉब मिलेगी, उन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। और उन्होंने ये भी इस बात का फ़ायदा ये उठाया, उन्होंने बोला कि देखिए हिंदू जो हैं वो अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स कर रहे हैं, तो मुस्लिमों को उन्होंने डिवाइड करने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ डिवाइड एंड रूल की अपनाई। अब 1906 में मुस्लिम डेलीगेशन आगा खान की लीडरशिप में वायसराय मिंटो से शिमला में मिला और आगा खान जो था वो एक धार्मिक व्यक्ति था जो कि अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर था। और इसी के साथ नवाब सलीम उल्लाह ढाका से वो भी इस दूसरा लीडर था, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुआ। वायसराय लॉर्ड मिंटो ने इन दोनों को एनकरेज किया कि वो जो है धर्म के आधार पर अपना एक अलग लीग बना लें, अलग पार्टी बना लें, सेपरेट पार्टी बना लें। और फिर उसके बाद इन्होंने दिसंबर 30, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग के एक ऑब्जेक्टिव्स थे, You have to read these objectives. Despite the loyalty of Muslim leagues to the British government, many Muslims participated in the national movement. Maulana Abul Kalam Azad, Muhammad Ali, Hakim Azmal Khan and Mazrul were against the league ideas. All these leaders propagated the national feelings. Abul Kalam Azad started journals like Al-Hilal and Maulana Muhammad Ali started the newspaper Comrade in English and Hamdard in Urdu. अब मुस्लिम लीग ने जो मांगे रखी थी, कुछ जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इन मांगों के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हम लोगों को आपस में बांट रही है, लेकिन वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मोहम्मद अली थे, हाकिम अजमल खान थे, मजरूल थे, इन्होंने मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में जाने का फैसला किया। और इसके बाद इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद ने जर्नल्स जैसे अली हिलाल स्टार्ट किया और मौलाना मोहम्मद अली ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया कॉमरेड इंग्लिश में, और उर्दू में हमदर्द स्टार्ट किया, जो कि यह बताता था कि हम सबको, हिंदू मुस्लिम सभी को इकट्ठा रहना चाहिए और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनकी पॉलिसी को हमें सक्सेस नहीं होना देना चाहिए। Split in Congress 1907 Surat session. The difference between the moderates and the extremists became sharp gradually. In 1906, Dadabhai Naoroji's efforts temporarily put an end to the growing differences. But in 1907, the Surat session of Congress failed to see the moderates and extremists on one forum. Ras Behari Bose was elected president in that year. The extremists wanted Bal Gangadhar Tilak as their president. This created difference between the two groups, and ultimately Tilak and his followers parted ways from Congress. Despite of this, Tilak drew honor as before and was busy in propagating his fiery ideas. Finally, in 1907, the Congress split in two parts. अब 1907 में सूरत के सेशन में कांग्रेस दो गुटों में बट गई। उस वक्त दादा भाई नौरोजी जो 1906 में थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये जो है ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएं और बहुत कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन जब 1907 में सूरत में सेशन हुआ तो मॉडरेट्स लीडर थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। वो मॉडरेट्स कह रहे थे कि हम शांतिपूर्वक अपनी डिमांड्स को रखेंगे अंग्रेज़ों के सामने, और एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि नहीं, अब ये हमारा अधिकार है और हम इसे छीन कर रहेंगे। तो उस वक्त रास बिहारी बोस जो थे वो प्रेसिडेंट चुने गए। उस वक्त जो इकट्ठी कांग्रेस थी उसके लीडर, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे लाल बाल पाल और उनके बहुत सारे फॉलोअर, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, और इसके बाद ये जो कांग्रेस थी ये दो गुटों में बट गई और इसके बाद कांग्रेस का पार्टीशन हो गया, क्योंकि तिलक और बाकी लोगों ने कांग्रेस को फिर छोड़ दिया और अपनी न्यू कांग्रेस पार्टी बना ली।
Children, emergence of Gandhiji, we will read about it in the next video. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary.